like ये du is equal to TdS minus PdV. It is the first equation relating with the internal energy and the quantity of heat in terms of entropy, like this dq is equal to TdS minus PdV, where this PdV is the work done. और इसी तरह जो है the next equation H is equal to U plus PV, ये हमने डिराइव की थी. आप कोई स्टूडेंट मुझे बताएं कि ये हमने सेकंड इक्वेशन जो है ये H the enthalpy is equal to U plus PV ये कर लिया था. यस सर. हाँ, इसको इन लाइक दिस, जैसे ये मैंने du is equal to TdS minus PdV इसी फॉर्म में इसको अगर आप लिखें dH is equal to du plus PdV plus VdV, तो du को सब्स्टिट्यूट करें इसकी वैल्यू को du TdS लाइक दिस, और ये कुछ टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी. du की आपने वैल्यू फ्रॉम दिस du will be substituted by equation number 1, ये जो अभी हमने सॉल्व किए, this dH is equal to TdS plus VdP, and the next एक इक्वेशन जी बताएं. ये जो थर्ड इक्वेशन है the relating with the Helmholtz function f is equal to u minus ts, और इसको भी हम if we write it in the differential form df is equal to du minus tds minus sdt, just put the value of du from equation number 1, it will be TdS minus PdV minus TdS minus SDT, and कुछ टर्म्स जो हैं ये कैंसल आउट हो जाएंगी, and you are left with dF is equal to minus PdV minus SDT. इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 में ये भी आप इसको देख लें, दिस गिब्स फंक्शन ये ऑलरेडी आपने किए थे. इसके बाद ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल का थ्योरम भी आपको करा दिया था मैंने. यस सर. हाँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का थ्योरम हो गया था, और ये मैंने आपको सेंड कर दिए थे या नोट सेंड नहीं किए थे? नहीं किए थे सर. आपने सेंड नहीं किए थे आपने सेंड सर. बहरहाल ये देख लेते हैं इसको. ये सर आपने प्रीवियस लेक्चर के वो प्लस आज का लेक्चर आपको मैं सेंड कर दूंगा. ये मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम, जो मैंने आपको ये सॉल्व कराया था. दिस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ m curly m by curly y is equal to curly n by curly x. It is a condition for the exact differential. It is condition for an exact differential. Exact differential theorem मैंने आपको बताया था. Now the first equation which we have derived, the equation number 1 du is equal to TdS minus PdV, और ये जिस तरह हमारे पास exact differential की एक इक्वेशन आई थी, exact differential की dz is equal to mdx plus ndy, इसको हमने लिखा था curly m by curly y curly n by curly x, curly m by curly y is equal to curly n by curly x. Like this, applying the exact differential theorem on this equation, I can write it curly t by curly p is equal to minus curly v by curly s, where this pressure is constant. Here in this case the entropy is constant. और इसी तरह आपके पास एक दूसरी इक्वेशन आई थी dH is equal to TdS plus VdV. इसी को applying the exact differential theorem, you can calculate the एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम को अप्लाई करने के बाद आप इक्वेशन इससे डिराइव कर सकते हैं, which will be इक्वेशन बी. सर जी क्या पूछ रहे हैं?
सर जी जहाँ पे ये जो ए इक्वेशन में अप्लाइंग फर्स्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई की है पार्शियल टी और पार्शियल बी, ये कैसे आई है सर जी? ये हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम अप्लाई किया है। आप ये अगर आप लेक्चर सुनने के बाद और फिर आप दूसरे दिन दोबारा लेक्चर सुनेंगे और मीनवाइल आप पहले लेक्चर को देखेंगे नहीं, तो आपको फिर डिफिकल्टीज हो सकती हैं, क्योंकि आपको दोबारा से वो लेक्चर देखना होगा, अदरवाइज आपके लिए फिर प्रॉब्लम होगा। और ये आपको मैं बता रहा हूं कि ये इक्वेशन आई है, दिस करली टी बाई करली पी, द एंट्रोपी इज कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली एस, द प्रेशर constant. It is equation derived from this du is equal to TdS minus PdV. The analogous equation, which is for the exact differential theorem, ds, dz. Here in this case, it is du. Here it is dz. Here it is TdS. Here it is mdx. Here it is minus PdV. Here it is ndy. Just apply the exact differential theorem like this. जैसे ये partial differential में ये इक्वेशन निकाली हुई है, like this if you apply the exact differential theorem on this equation you will get this. इसी तरह this dH is equal to TdS plus VdP, just apply the exact differential theorem on this equation. dF is equal to minus PdV minus SCT, ये जो अभी हमने इक्वेशन डिराइव की है, अभी नहीं डिराइव की, लास्ट लेक्चर में की थी, इस पर आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम अप्लाई करें, दोनों साइड आपको माइनस आएंगे, दोनों साइडों पे, और dg is equal to vdp minus sdt, फोर्थ इक्वेशन, you will get 4 इक्वेशन। एक इक्वेशन मैंने आपको निकाल दिए, 3 इक्वेशंस आप और निकालें, 3 इक्वेशंस आप और निकालेंगे। these are Maxwell equations, Maxwell thermodynamical equations. अब gentlemen, the very important, ये मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट, 3, इट इज यस 4, यस 4, 5, हाँ ये। अब इसमें आप देखें, ये हाँ दोबारा से मैंने ये थर्ड लेक्चर में ये कर भी लिया है, ये डी यू इसकी बजाय अभी आपको ये सेंड भी कर देंगे, अगर आप अपनी सहूलत के लिए लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। ये अप्लाइंग दी, ये डी यू TdS minus PdV, it is the first equation. अब इस applying the exact differential theorem, ये exact differential theorem dz is equal to this, और partial differential में is equal to this. इस पर ये exact differential theorem अगर apply करेंगे आप first equation पर, it will be like this, जो मैंने अभी derive किया है। अब now dH is equal to TdS plus VdV, by applying exact differential theorem we get, ये दूसरी equation आपके पास आ जाएगी। इसको बेशक आप नोट करें और फिर आप देख लें कि आप अप्लाई करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम, तो आपके पास ये इक्वेशन आती है, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू पी, द एंट्रोपी कांस्टेंट करली वी बाय करली एस पी कांस्टेंट। देन फॉर इक्वेशन 3 dF इज इक्वल टू माइनस SDT माइनस PdV, और ये दोनों साइडों पे माइनस आ जाएगा, इट विल बी, दोनों पॉजिटिव साइन हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये जो है इक्वेशन सी, करली एस बाय करली वी टी कांस्टेंट, curly p by curly t v constant, and now the last equation, it was dg, it is equal to minus sdt plus vdp, और इसको applying the exact differential theorem you can get this equation, equation D. Here the equation A, B, C and D, these are Maxwell equations, these are Maxwell equations, और इसमें characteristic functions are, अब इनमें characteristic functions जो हैं are u, ये जो है पहले इसमें u हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ये देखें, ये पहली इक्वेशन कौन सी है, डी यू फॉर द डी यू फॉर द इंटरनल एनर्जी, डी एच डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन डी एफ डी जी। द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस आर u इंटरनल एनर्जी, f हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, h एंथैल्पी एंड g गिब्स फ्री एनर्जी। These are known as characteristic functions, और the thermodynamic parameters are T, S, P and V. ये जितनी भी इक्वेशंस हैं, जितनी भी मैक्सवेल इक्वेशंस मैंने आपको डिराइव करके बताई हैं, इनमें देखें, ये प्रेशर है, एंट्रोपी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एंट्रोपी है,
एंट्रोपी है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, एंट्रोपी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर. दीज आर 4 in numbers. The thermodynamic parameters are T, S, P and V. वो क्या थे? वो जो मैंने आपको DU, DH, DF, DG, these are thermodynamic सारी जी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस हैं वो, और ये थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं T, S, P and V. These are thermodynamic parameters. अब जेंटलमैन जो वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है जिसके लिए आपको मैं थोड़ा फैसिलिटेट करना चाहता हूं. दैट इज, अब हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो हैं ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास 8 पैरामीटर्स हैं. थर्मोडायनामिक कैरेक्टर्स जो हैं हमारे पास वो 8 हैं, और इसमें अब एक तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मैंने आपको बताया DU, DH, DF, DG, और एक मैंने आपको बताया ये पैरामीटर्स जो है थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स बताए जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी वगैरह वगैरह. अब इसमें चूंकि ये सारी इक्वेशंस एक जैसी हैं, ये थर्मोडायनामिक की डेरिवेशन हो गई है. जस्ट एक फॉर्म में आप इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन लाएंगे. DU इज इक्वल टू व्हाट, DH इज इक्वल टू व्हाट, DF इज इक्वल टू व्हाट, DG इज इक्वल टू व्हाट. फिर आप उस पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द मैक्सवेल इक्वेशन. ये मैक्सवेल इक्वेशन की डेरिवेशन हो गई है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप ये सारी इक्वेशंस जो हैं जिनमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह वगैरह हैं, ये सारी इक्वेशंस एक जैसी हैं. आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं. तो इसके लिए जो है एक साइंटिस्ट था, द फिजिसिस्ट नेम्ड, आप इसके नाम को जो चीजें आप अपनी सहूलत के लिए बेहतर समझते हैं उनको आप लिख लिया करें. बाकी चीजें आपको मैं भी कुछ लिटरेचर भेज दूंगा, और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप लिखा जरूर करें, और ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. इनको आप याद भी क्या करें. J. Gillespie made a sentence and drew a diagram to find Maxwell equations. J. Gillespie ने इन इक्वेशंस को मेमोराइज करने के लिए, बिकॉज यू कैनॉट मेमोराइज, अगर आप मेमोराइज करेंगे तो आपका एक बहुत ज्यादा टाइम जहां पर सर्फ होगा, और सारी इक्वेशन सिमिलर हैं. मैं जब आपको कहूंगा कि डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन, आपको फर्स्ट याद नहीं होगी, आप सेकंड डिराइव करके दे देंगे, थर्ड डिराइव करके दे देंगे, फोर्थ करके दे देंगे. दैट विल बी रॉन्ग, इनकरेक्ट होगा वो. आपको जब व्हेन आई टॉक अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन, इट मींस फर्स्ट इक्वेशन जो पैरामीटर्स फर्स्ट में यूज होते हैं वही आपको देने होंगे. अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनमें से कोई डिराइव करते हैं, देन द क्वेश्चन विल बी रॉन्ग. तो इसके लिए J. Gillespie ने एक हमारी फैसिलिटी के लिए टू मेमोराइज दीज मैक्सवेल इक्वेशंस, उससे कहा था कि J. Gillespie मेड अ सेंटेंस एंड ड्रू अ डायग्राम टू फाइंड मैक्सवेल इक्वेशंस. उसके लिए आप नोट करें, ये एक सेंटेंस है, गुड फिजिसिस्ट हैव, ये हर वर्ड का पहला हर्फ बड़ा लिखें. दिस गुड, G कैपिटल, फिजिसिस्ट, P कैपिटल. गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स. ये नोट कर लें आप, ये इसको लिखें. गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर very fine teachers. You have characters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 characters आपके पास आ गए हैं. Now gentlemen, आपको जैसे मैंने बताया था, this G stands for the Gibbs function, P for the pressure, H for the enthalpy, S for the entropy, U for the internal energy, V for the volume, F for the Helmholtz function, T for the temperature. If you know the sentence, good physicists have studied under very fine teachers, then you can, एक सीक्वेंस में आपको ये याद रहेगा, कि otherwise आप इसको याद नहीं कर पाएंगे. Now gentlemen, we have these 8 parameters G, P, H, S, U, V, F, T, और इसके लिए हमें 8 corners चाहिए. 8 corners. We need a diagram जिसके लिए हमारे पास कितने कॉर्नर्स हो. वी नीड 8 कॉर्नर. अब देखिए, हम अगर एक क्यूब की फॉर्म में हम ये ले लेते हैं,
So we have 4 corners here, but to designate like this, we need 8 corners. तो इसके लिए I draw it like this. आप इसको बेशक आप इस डायग्राम को भी ड्रा कर सकते हैं. This like this. This corner, आप corner देखें, 1 2 3 4 5. कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस फिगरे की You have to start from the left upper corner. आपने लेफ्ट अपर कॉर्नर से स्टार्ट लेना है. अगर आप जी अपर लेफ्ट कॉर्नर, गुड. Teachers. Okay, gentlemen. Good physicists have studied under very fine teachers. Now, gentlemen, आप देखें, अब देखें मेरे पास. अब आपको ये याद रखना होगा कि जो पहली मैक्सवेल इक्वेशन है वो du से स्टार्ट होती है. du के बाद आगे क्या आता है? du. दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो एंथैल्पी से स्टार्ट होती है, dh. तीसरी मैक्सवेल इक्वेशन हेल्मट फंक्शन से स्टार्ट होती है, df. एंड द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इट स्टार्ट्स फ्रॉम dg. इट इज इक्वल टू व्हाट? du, dh, df, dg. इसके बाद आपने अब देखना है कि du देखें किसके इक्वल है. फॉर एग्जांपल देखें, ये जो है दिस u इज हियर इन. अब इसके सराउंडिंग में एक s है और दूसरा v है. और आपको पता है कन्वेंशनली यू ऑलवेज टेक द पॉजिटिव साइन फॉर द अपवर्ड एंड फॉर द नेगेटिव साइन फॉर द डाउनवर्ड एंड नेगेटिव साइन फॉर द लेफ्टवर्ड एंड पॉजिटिव साइन फॉर द राइटवर्ड. ये आपको ये चीजें नोन है. तो आई कैन राइट इट लाइक दिस. du इज इक्वल टू दिस ds. इट इज अपवर्ड, u से अपवर्ड है. So I can write it like this, ds, and just make a circle here. And with the negative sign, because it is towards leftward, u से left की तरफ है, with the negative. अब इसके बाद the second equation with the enthalpy, dh, it is equal to dh. Here in this case you have upward. इसके नेबरहुड में आप देखें upward you have dp pressure है आपके पास. I can write it like this, dp with this circle, and it is rightward entropy. Enthalpy के rightward entropy है ds with the plus sign because it is rightward. So ds with the circle here. And then for the third maxwell equation, it is df. df. Here it is f. V is downward. It should be negative. Both signs with sign a circle and dv with the minus sign a circle dv because here you see f के dv डाउनवर्ड है, dv नेगेटिव साइन के साथ, एंड देन t with the minus sign because f से ये लेफ्टवर्ड माइनस के साथ होगा with the circle dt, and then for the g dg. इसके साथ देखें ये प्लस साइन होगा because it is rightward. तो with the circle it will be
dp and g से ये t, it is downward, negative, it will be like it dt. Now gentlemen, आपने 4 इक्वेशंस जो हैं उनको लिखा है, this incomplete 4 thermodynamical equations. I'm saying incomplete because you have circles here, और सर्कल्स में आपको पता नहीं है कि आपने क्या पुट करना है. Now I'm talking about the canonical pairs. क्या कह रहा हूं मैं? Canonical pairs. हमारे पास एक वर्ड है जो आपने अभी इस किसी टॉपिक में आपने थर्मोडायनामिक्स भी ज्यादा इतनी देखा नहीं होगा, या मे भी आपकी नजरों से नहीं. बहरहाल कैनोनिकल पेयर्स होते हैं टेम्परेचर के साथ. हमेशा द कैनोनिकल पेयर फॉर द टेम्परेचर ये वॉल्यूम होता है, सॉरी एंट्रोपी होती है, क्योंकि देखें एंट्रोपी और टेम्परेचर का एक ताल्लुक है. टेम्परेचर के साथ क्या है? एंट्रोपी. प्रेशर के साथ क्या है? वॉल्यूम. वॉल्यूम के साथ क्या है? प्रेशर. एंट्रोपी के साथ क्या है? टेम्परेचर. These are canonical pairs: temperature, entropy, pressure, volume, volume, pressure, entropy, temperature. अब इसे देखें, ये हमारे पास एंट्रोपी है, तो इट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द सर्कल. इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? एंट्रोपी के साथ क्या है? टेम्परेचर. वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ क्या है? इट इज प्रेशर. डीपी, द प्रेशर के साथ क्या है? वॉल्यूम. एंट्रोपी के साथ क्या है? अगेन इट इज टेम्परेचर. डीवी, वॉल्यूम के साथ क्या है? प्रेशर. डीटी, टेम्परेचर के साथ क्या है? एस, एंट्रोपी. डीपी, प्रेशर के साथ क्या है? वॉल्यूम. डीटी, टेम्परेचर के साथ क्या है? एंट्रोपी. नाउ जेंटलमैन, द इक्वेशंस, थर्मोडायनामिकल इक्वेशंस आर कंप्लीट. अब आपको मैं बताता हूं कि आपने ये, मैं देख लेता हूं. देखिए, ये आपने इक्वेशंस जो अभी डिराइव किए हैं, या लास्ट लेक्चर में, ये पहले सेकंड लेक्चर में, ये du is equal to TdS minus PdV, this equation. Now gentlemen, with the help of that diagram, du is equal to TdS minus PdV. Now the second equation, it was dH is equal to TdS plus VdP. Second equation, TdS plus VdP. Third equation, which is the third equation is this one. dF is equal to minus SdT minus PdV. dF is equal to minus SdT minus PdV. dG is equal to, for the fourth equation dG, it is equal to minus SdT plus VdP. Minus SdT plus VdP. Now gentlemen, with the help of diagram, the good physicists have studied under very fine teachers. इसके साथ इसके पहले हर्फ आप ले लेंगे और वो आपके पैरामीटर्स को शो करते हैं, और उसकी हेल्प से आप ये इक्वेशन निकाल लेंगे. अब ये इक्वेशंस अपने इक्वेशंस फाइंड किए हैं. कीप इन योर माइंड, ये आपने डेरिवेशन नहीं की, इसकी कैलकुलेशन नहीं की. कैलकुलेशंस वो थी जो हम ऑलरेडी अप्लाइंग द एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम ऑन द इक्वेशन du, dH, dF, dG पर जब हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म के जो हमने इक्वेशंस डिराइव की, दोज वर मैक्सवेल इक्वेशंस. अब हमने ये इक्वेशन फाइंड किए हैं, इनकी डेरिवेशन नहीं की, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, लेकिन हमारे लिए इनको फाइंड करना आसान हो गया है. अब कभी क्वेश्चन
आपसे कभी हो जाता है ये क्वेश्चन, मैं कर लूं, या कहीं आप किसी क्लास में हो, आपसे कोई क्वेश्चन अब फाइंड करना है, आपको लिखेंगे कि फाइंड दी मैक्सिमम लोकेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आपने डायग्राम की मदद से हल करना होगा। अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द मैक्सिमम लोकेशंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और आप उसकी डेरिवेशन कर लें, तो वो गलत होगा। आपसे जो चीज मांगी जाएगी आप वैसे ही अकॉर्डिंगली आपने वैसे ही डील करना है। तो ये आपने ये इक्वेशंस आपको मालूम हो गई। अब इन पर आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम आपको आता हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम आप अप्लाई करेंगे और इस तरह जो है आप ये मालूम कर सकते हैं मैक्सिमम लोकेशंस विद नोइंग दिस। देखिए अब डी यू, डी एच, डी एफ, डी जी ये आपको मालूम नहीं करने पड़े। तो ये इट वाज द थर्ड लेक्चर। नाउ जेंटलमैन, ये आप दरमियान में वो छुट्टियां वाला ले लेते हैं और इससे जो है वो सूरत हाल ज्यादा मुश्किल हो जाती है कि फिर वो कोर्स कवर नहीं होता। ये इट इज दी फोर्थ लेक्चर जेंटलमैन। अब मैंने आपको बताना था आई वाज ये जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये है इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम एक तो थर्मोडायनामिक सिस्टम है, a system that may be described in terms of, ये सारा थ्योरेटिकल है, ये सारा थ्योरेटिकल है, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, नो मैथमेटिक्स। ये मैं आपको वैसे थोड़ा समझा देता हूं, इसके बाद ये भी मैं आपको लेक्चर के साथ जो प्रीवियस लेक्चर है उसके साथ आपको सेंड कर दूंगा। थर्मोडायनामिक सिस्टम, ए सिस्टम दैट मे बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स। अब थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताए थे 8 कोऑर्डिनेट्स। थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? ये प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये एंट्रोपी है, वॉल्यूम है, लाइक दिस, दीज ऑल आर थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया हुआ है थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो ए सिस्टम दैट मे बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब इसमें when a system is not influenced in any way by its surrounding, साफ जाहिर है मैंने आपको 3 इसकी काइंड्स बताई थी सिस्टम की, कि सिस्टम्स कैन बी मे बी system may be isolated, system may be closed, system may be open, closed and isolated. Isolated system कौन सा होता है? जिसमें no transfer of mass, no transfer of energy। तो आइसोलेटेड सिस्टम की कोई इंटरेक्शन साथ सराउंडिंग के साथ उसकी कोई इंटरेक्शन होती ही नहीं है। इसीलिए ये थर्मोडायनामिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम्स जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि उनकी किसी सराउंडिंग या किसी और सिस्टम के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होती। लेकिन और जो सिस्टम है, अब क्लोज सिस्टम जो है उसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफर ऑफ मास नहीं है। जो ओपन सिस्टम है उसमें ट्रांसफर ऑफ मास भी है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी है। लेकिन जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसमें दोनों पॉसिबल नहीं है, मास एज वेल एज एनर्जी। तो इंटरेक्शन चूंकि इसमें नहीं होती, तो हमें इंटरेक्शन वाले सिस्टम ही चाहिए कि कैसे कैसे सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कैसे उनमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो हैं उनकी चेंज को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए इसमें इसकी इंपॉर्टेंस जो है इन थर्मोडायनामिक्स में ये आइसोलेटेड सिस्टम की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, या लीस्ट इंपॉर्टेंट है, या इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो लिटिल है। तो इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द thermodynamics, isolated systems are of little importance। ये आपको बता दिया है, समझ आ गई है। When the state of a system changes, interactions usually take place। किसी भी सिस्टम में जब तब्दीलियां आएंगी, सिस्टम में स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज होगी, तो इंटरेक्शंस यूजुअली टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। टेम्परेचर सराउंडिंग को ट्रांसफर हो रहा है, सराउंडिंग से टेम्परेचर सिस्टम को ट्रांसफर हो रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन दी कि हायर टेम्परेचर पर क्या चीज है। द हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। So when the state of the system changes, interactions usually take place between the system and its surrounding when there is no unbalanced force in the interior। कभी किसी सिस्टम में विद इन दिस सिस्टम कोई इंटीरियर फोर्स ना हो, या फोर्स आउटवर्ड
यानी सराउंडिंग के साथ भी आउटवर्ड कोई फोर्स ऐसे ना हो, तो हम उस सिस्टम को कहते हैं कि ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बताया है कि व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस्ड force in the interior of a system, and also none between a system and its surrounding, the system is said to be in a state of mechanical equilibrium. इस स्टेट को हम क्या कहेंगे? कोई फोर्स सिस्टम के विद इन द सिस्टम भी ना हो और सराउंडिंग के साथ भी फोर्स ना हो, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान कोई फोर्स की इंटरेक्शन ना हो, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अब एक और टर्म है केमिकल इक्विलिब्रियम। वन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, द अदर इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ए सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, डज नॉट टेंड टू अंडरगो ए स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर सच एज केमिकल रिएक्शंस भी ना हो उसमें, और उसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर भी ना हो, तो हम कहते हैं उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस भी ना हो। ये लिखा हुआ है, आर ए ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू एन अदर सच एज डिफ्यूजन और सॉल्यूशन इज स्लो। ये प्रोसेस जो मैंने डिफ्यूजन का आपको बताया है, ये स्लो हो या बिल्कुल ना हो, तो इसको हम कहते हैं इट इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को क्या कहते हैं कि ये सिस्टम जो है केमिकल, अगर उनके दरमियान फोर्सेस ना हो इंटीरियर में सिस्टम के, विद इन द सिस्टम एंड विद द सराउंडिंग, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जब ये केमिकल कंपोजिशन हो गई या इनकी ये ट्रांसफर ऑफ मैटर हो गया या उसकी ये इनका डिफ्यूजन प्रोसेस या ये जो मैंने नाम लिए हैं, तो ये एक यूनिफॉर्म हो हर पार्ट में, सिस्टम के हर पार्ट में, तो दिस इज कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम। और एक थर्ड है, ये इक्विलिब्रियम की काइंड्स हैं या उसको हमने कैसे उसको डिवाइड किया है। एक है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब साफ जाहिर है, जैसे नाम से जाहिर है, थर्मल रिलेटेड विद द टेम्परेचर। व्हेन ए सिस्टम इज इन, एक सिस्टम मैकेनिकल में इक्विलिब्रियम में भी हो एज वेल एट द सेम टाइम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हो, तो उस सूरत में देयर इज नो चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स में चेंज नहीं होगी। कब? कोई भी सिस्टम जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो और केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, तो no change in the coordinates of the system, all parts of the system are at the same temperature। अब साफ जाहिर है टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होगा, तो सबके सब पार्ट सेम टेम्परेचर पर होंगे, एंड टेम्परेचर इज आल्सो सेम विद द सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ भी टेम्परेचर सेम हो, सिस्टम का टेम्परेचर भी सेम हो। तो when the condition of all three types of equilibrium are satisfied, यानी इसको हम कहेंगे टेम्परेचर की एक्सचेंज ना हो विद इन द सिस्टम और विद द सराउंडिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जब ये कंडीशन ऐसी हो कि कोई भी सिस्टम, when the conditions of all three types of equilibrium are satisfied, क्या मतलब? the system केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी हो, तीनों इक्विलिब्रियम स्टेट्स, तीनों इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम में मेंटेन हो, तो उस सूरत में द सिस्टम इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मींस कि तीनों स्टेट इक्विलिब्रियम की तीनों कंडीशंस उस पर अंडर द थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम वो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको एक जो पर्टिकुलरली विद द हीट है, विद द टेम्परेचर, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। जो इसकी केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड है, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। जो इसकी इनके दरमियान सिस्टम और सराउंडिंग या विद इन द सिस्टम फोर्सेस
स्टेट के साथ रिलेट करता है, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये तीनों इक्विलिब्रियम हो तो उस सूरत में इसको हम कहते हैं इट इज द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। और when the conditions for any one of three types of equilibrium that constitute thermodynamic equilibrium are not satisfied, अगर तीनों conditions satisfied ना हो, means that thermal equilibrium या chemical या mechanical